Good morning, students. Today I am going to start your second chapter from your Footprints Without Feet supplementary reader. The name of the chapter is The Thief's Story. First, a general. This story is written by Ruskin Bond. Before start reading the chapter, I am going to give you a general introduction of the lesson here. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. What happens? We will see. Does the boy betray his trust? What will happen? We will see in this chapter. The story is about a 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers. This time he kept his name Hari Singh. The other person in the story is a 25-year-old writer named Anil. The thief met Anil and asked him if he can work for him. The story unfolds on how the thief betrays Anil by committing a theft but retracts later on. We are going to read in this chapter कि कैसे एक thief हमेशा अपना नाम बदलता रहता है, चोर अपना नाम बदलता रहता है, एवरी मंथ अप्रॉक्सीमेटली नाम बदलता है. क्यों? पुलिस से बचने के लिए और जिस जगह वो काम करता है उन सब एम्प्लॉयर्स से बचने के लिए. इस बार वो किससे अपना नाम क्या रखता है? वो हरी सिंह. और वो किससे मिलता है? 25 साल के एक युवक से मिलता है, उनका नाम अनिल रहता है. अब वो अनिल को भी बिट्रे करता है, चीट करता है. वो क्या करता है, कैसे करता है और वो कैसे पकड़ा जाता है, हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पेज नंबर 8. I was still a thief. I was still a thief when I met Anil, and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy-going, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man's confidence. You took a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. And after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I don't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. अब अनिल ने क्या कहा कि वो उसे पे नहीं कर सकता. अब देखें इसमें इस पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या हैं. लीन मीन्स थिन, दुबला. फ्लैटरी एक्सेसिव एंड इनसिंसियर प्रेस, है ना, मस्के लगाना, फ्लैटर करना. मॉडेस्टली इन एन अनअज्यूमिंग मैनर, विदाउट वेंटली और एरोगेंस, है ना, मॉडेस्टली बिहेव करना. एम्प्लॉयर्स, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज पीपल, वो एम्प्लॉयर्स होते हैं. ग्रंटिंग मेक अ लो शॉर्ट ग्लूचर्ड साउंड, अपीलिंग, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पे ये पैराग्राफ, इस पेज क्या कहता है स्टोरी के बारे में. द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी मीट. यहाँ पे टू मेन कैरेक्टर्स हैं, अनिल एंड द thief. The thief is the narrator of the story. ये thief खुद ही स्टोरी का नरेटर है. The thief says that according to him he was pretty good at stealing. वो खुद अपनी प्रेस कर रहा है कि वो चोरी करने में बहुत शातिर है. Anil was watching a wrestling match when the thief approached him. अनिल क्या कर रहा था, सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे, वो रेसलिंग का एक मैच देख रहा था जब यहाँ पे वो थीफ उसके सामने आया. अनिल वॉज अ टॉल
लीन एंड ईजी गोइंग मैन ऑफ 25। वो कैसे थे उनको डिस्क्राइब किया गया है, लंबे थे, दुबले थे और 25 साल के यंग मैन थे। द थीफ हैड नॉट कमिटेड एनी थेफ्ट इन द पास्ट फ्यू डेज एज ही डिड नॉट गेट अ चांस। उस चोर ने शायद पिछले कई दिनों तक कोई चोरी नहीं की थी, उसे कोई चांस नहीं मिला था चोरी करने का, तो अब वो क्या कर रहा है। ही थॉट दैट अनिल वुड बी अ गुड मैन टू स्टील थिंग्स फ्रॉम। अब उसे लगा कि बहुत दिन हो गए कोई चोरी नहीं की, तो शायद ये अनिल जो है अच्छा एक आदमी अच्छा लग रहा है कि इसकी कुछ भी चीज़ें वो चुरा सकता है, उसे वो रॉब कर सकता है अनिल को, ऐसा उसने सोचा था। किसने? यहाँ पे जिसने अपना नाम रखा है हरि सिंह, द स्टोरी नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, द थीफ हियर। Anil would be a good man to steal things from, so he thought about getting comfortable with him. Then the thief commented on Anil that he looks like a wrestler himself. अब उसने अनिल के साथ कॉन्वर्जेशन करना स्टार्ट किया उस थीफ ने। फिर उसके साथ बातें करते करते उसने कहा कि मुझे आपको देख के लगता है कि आप भी एक रेसलर हैं। तो फिर वो क्या कहता है, ही सेड दैट टू विन हिज कॉन्फिडेंस बाय फ्लैटरिंग हिम। उसने ऐसा क्यों कहा? उसे बटर लगाने के लिए, उसे पॉलिश मस्का लगाने के लिए, ताकि वो उसके फ्रेंड बन जाए या उससे बातें करने लग जाए, उससे क्लोज आ जाए उसके। इसलिए उसने कहा कि आपको देख के लगता है कि आप भी एक रेसलर हैं। और ही सेड दैट टू विन द कॉन्फिडेंस बाय फ्लैटरिंग हिम। टू दिस अनिल रिप्लाइड that even the thief looked like a wrestler, which offended him as he was very thin at the time. अब अनिल ने भी क्या रिप्लाई किया? उसने भी उसको देख के कहा कि मुझे लगता है आप भी एक रेसलर हैं। तो मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि वो उस समय वो थीफ कैसा था? दुबला था, तो शायद वो भी उसे ऑफेंड कर रहा था। जो उसकी बातें उसी को उल्टा पड़ गया उसके ऊपर, और उसने कहा कि आप भी रेसलर लगते हैं। मगर वो थीफ जो वो भी बहुत ज़्यादा दुबला था, तो वो उस समय कहीं से कहीं तक भी रेसलर नहीं दिख रहा था। द थीफ मॉडेस्टली रिप्लाइड दैट ही डिड रेसलर अ बिट समटाइम्स। अनिल आस्क्ड हिज नेम एंड द नरेटर लाइड दैट हिज नेम वॉज हरि सिंह। अब वो थीफ ने एक मॉडेस्टली एक रिप्लाई क्या दिया, ही डिड रेसलर अ बिट, थोड़ा सा, बट उसने फिर उसका नाम भी पूछा, तो उसका नाम क्या बताया अपने उस नरेटर ने? हरि सिंह। उसने झूठ बोला। द नरेटर यूज टू चेंज हिज नेम्स एवरी मंथ टू एस्केप द पुलिस एंड द एक्स एम्प्लॉयर्स। दूसरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्तियों के साथ वो काम करता था, उनसे बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए हर महीने वो अपना नाम बदल देता था। देन दे स्टार्टेड वॉकिंग अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, टॉकिंग अबाउट अ वेल ऑयल्ड रेसलर्स। फिर वो उन रेसलर्स के बारे में बात करने लगे जिन्हें वो देख रहे थे। अब whom they watched on the screen. The narrator did not have much to say as he did not know much about wrestling. उस नरेटर को रेसलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसको कोई नॉलेज ही नहीं था। As Anil was leaving, the narrator again approached him, asking him that he wanted to work for him. अब वो अनिल जो है वहाँ से जा रहा था, तब नरेटर उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि मुझे आपके साथ काम करना है। नरेटर अप्रोच्ड हिम विद द मोस्ट अपीलिंग स्माइल। जो थीफ था बहुत ही उसे मना लेने वाली एक मुस्कुराहट के साथ उसके सामने गया। अनिल टोल्ड हिम दैट ही वोंट बी एबल टू पे हिम फॉर हिज वर्क। अब अनिल ने क्या कहा कि मैं आपको किसी भी काम के लिए पेमेंट नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इस स्टोरी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।